Hello everyone, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. आज हम यहाँ क्वेश्चन आंसर देखेंगे. So student, here is a question. Answer is one word or phrase. Which assembly was set up to make the Constitution of India? Answer is Constituent Assembly. Second question is, who was the chairman of the drafting committee? Answer is B.R. Ambedkar. Third question is, on what day did the Constitution of India come into force? Answer is 26 January 1950. Fourth question is, what does the word sovereign mean? Answer is having the supreme power of country. Same here. Question number 5 is, what word means equal distance from all religion? Answer is secular. Sixth question is, what is the right to vote called? Answer is universal adult franchise. Understood? These all questions you have to write in your notebook. Next question is, answer the question in brief. First question is, how serious was the efforts to make the Constitution of India? Here is the answer on page number 180. Page number 180. In order to make the Constitution of India, a Constitution Assembly was set up. They represented almost every section of the Indian people. The drafting of the Constitution was done by a drafting committee headed by Dr. B.R. Ambedkar. It took 2 years, 11 months and 17 days. All these processes show the seriousness with which the Constitution of India was made. ये यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर है. लाइंस आंसर्स के नीचे अंडरलाइंस दी गई है. आपको उतना ही आंसर आपको लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, विजन ऑफ द इंडिया. सी हियर ऑन पेज नंबर 181, द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स. ये F2 का आंसर है. जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो F में दिए गए हैं. राइट आंसर्स द क्वेश्चन इन ब्रीफ. तो आपको यहाँ पर देखना है द विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग हेड्स. फर्स्ट इज, यहाँ पर आपको हेडिंग डालकर लिखना पड़ेगा सोवरेन. सोवरेन, द वर्ड सोवरेन मीन्स हैविंग द supreme power in a country. Second, socialist. The word socialist mean a country which gives an equal rights to all citizens in the national wealth. Third is secular. By the word secularism is not mean irreligion, but it means equal distance from all religion. Fourth is democratic. The people are the supreme power in a democracy. All powers vast in the people. Then republic. By a republic is mean a government which is the representative of the people and in which the head of the state is elected by the people for a specific period which any hereditary rights. तो ये आपका F2 का आंसर है. यहाँ पर आपको हेडिंग डालकर लिखना है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. और इसके आगे आपको इनके बारे में भी एक एक लाइन्स लिखना है. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोवरेन एंड रिपब्लिक? यहाँ सोवरेन और रिपब्लिक के डिफरेंस के बारे में बताया है. तो ऑन पेज नंबर 181 पर ही देखेंगे हम सोवरेन. ये देखिए यहाँ लिखा है सोवरेन, ये F3 का आंसर है. तो आपको यहाँ से ये सोवरेन देन रिपब्लिक, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है. तो आप यहाँ से द वर्ड सोवरेन मीन्स हैविंग द सुप्रीम पावर इन द इंडिया. India is a sovereign is and may, as it can makes law without any indifference from any other power of country. Thus, this supreme power lies in the people, as we can see from this supreme power lies in the people. ये people के हाथ. तो आप यहाँ से यहाँ तक ये आप F3 में लिखेंगे sovereign and this is republic. तो republic
रिपब्लिक के लिए आप यहाँ बाय अ रिपब्लिक इज मीन a government which is representative of the people and which is the head of the state is elected by the people for a specific period without any hereditary rights. आपको यहाँ तक लिखना है. तो ये क्वेश्चन 3 हो गया. Now next question is what do you understand by the ideals of justice? What type of justice is mentioned in a preamble? अब यहाँ पर हम justice पे आ जाते हैं. देखिए on पेज नंबर 182 तो आपको F4 का आंसर आपको पेज नंबर 182 पर मिलेगा. इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन द प्रिम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज द गोल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जस्टिस इज नेसेसरी फॉर अ डिसेंट वे ऑफ लाइफ सो द पीपल कैन बी अश्योर्ड सेफली सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस इन लाइफ. द प्रिम्बल मेंशन 3 टाइप ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. 3 टाइप ऑफ जस्टिस प्रिम्बल ने मेंशन किए, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो आपको यहाँ तक लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ अब्राहम लिंकन डिस्क्राइब डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को कैसे डिस्क्राइब किया है. तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 181 पर. यहाँ देखिए यहाँ देखिए इधर मिलेगा F5. ये आपको F5 का आंसर है. In Abraham Lincoln's word, democracy is a form of government of the people, by the people and for the people. In India, all citizens above the age of 18 years have the right to vote in elections and elected their representative. आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है. Then next question is define any 2 values and ideals of the Constitution of India. 2 values और ideals आपको बताना है. तो कोई भी हम 2 ideals के बारे में हम यहाँ बात कर सकते हैं. तो here is 2 ideals of देखिए on पेज नंबर 182 पर आपको मिलेंगे F6 और ये F6 लिबर्टी और इक्वालिटी. उन्होंने कोई भी 2 आइडियल्स के बारे में बोला है तो हम कोई भी 2 वैल्यू और आइडियल्स लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिखा है लिबर्टी और इक्वालिटी के बारे में बताया है. लिबर्टी द प्रिम्बल मेंशन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. दिस एंटाइटल्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रीडम्स बाय विच दे कैन बिकम एबल एंड गुड सिटीजन. ओके आपको यहाँ तक लिखना है. फिर इक्वालिटी में आप आ जाएंगे. द प्रिम्बल मेंशन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी. सम पीपल आर रिच एंड सम आर पुअर. सम पीपल क्लेम टू बिलोंग टू हाई कास्ट एंड सम आर ट्रीटेड एज द डाउन ट्रोडन. ओके आगे हाउएवर इन आवर कंट्री ऑल पीपल आर ट्रीटेड एज पर दे आर हैव इक्वल राइट्स. दे आर इक्वल बिफोर लॉ. ये यहाँ तक आपको यहाँ तक इसका आंसर लिखना है. अंडरस्टूड. नाउ डिटेल. ये डिटेल का जो आंसर है आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल. इसमें बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो गए हैं ऊपर के क्वेश्चन से. तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी एंड लिबर्टी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी एंड लिबर्टी. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये G3 का आंसर. ये देखिए यहाँ पर इक्वालिटी और लिबर्टी का क्या मतलब है. तो हम यहीं से ही हम आंसर ले सकते हैं. द प्रिम्बल मेंशन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. दिस एंटाइटल्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रीडम बाय विच दे कैन become able good citizen. Okay, or democracy gives its citizen the right to express themselves. Okay, themselves यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है. और इसके अलावा जो भी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स मैच अप ट्रू फॉल्स राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ये आपको खुद ही बुक पढ़कर आपको उसमें से कंप्लीट करना है. सो you have to write, you have to note down in your fair copy. आपको अपनी फेयर कॉपी में इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है. थैंक यू.